নমস্কার, আমি আরাত্রিকা। আপনারা দেখছেন নিউজ টুডে। मेरा खुद का पुस्तक प्रेम वहाँ से शुरू हुआ और फिर मैंने देखा मेरे पिताजी बहुत लिमिटेड सैलरी थी, तो हमें हर वीकेंड नेशनल लाइब्रेरी में ले जाते थे और नीचे हम चिल्ड्रंस लाइब्रेरी में जाके समय गुजारते थे। तो लेकिन हमारे पिताजी बहुत कम वक्त रहे और मेरी 18 वर्ष की उम्र में वो छोड़ के चले गए। लेकिन मेरे पुस्तक प्रेम में गगर साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि जब मैं जाता था गगर साहब के यहाँ तो वो 1-2 घंटा तो मुझे बैठना ही पड़ता था वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट रहते थे। मैं जनरली किताब लेके जाता था और मेरे को मालूम था 2 घंटा बैठना है तो 2 घंटा किताब पढ़े। तो उनको ये बहुत अच्छा लगता था और मैं जब भी जाता उनके पास में तो फर्स्ट क्वेश्चन बिजनेस बात में कौन सी किताब पढ़ रहे हो, और मैंने ये किताब पढ़ी है, तूने पढ़ी है? नहीं सर नहीं पढ़ी है। अच्छा ले जाओ। अच्छा खाली किताबों की नहीं, और भी कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कहीं पढ़ते थे वो तो आके हमसे शेयर करते थे और मेरे को दे देते थे। गगर साहब बहुत पॉजिटिव थे अपनी किताबों के बारे में, और मेरे को अगर किताब देते थे तो बोलते थे ये रिटर्न होनी चाहिए, और अगर मैं 2-3 दिन बाद रिटर्न नहीं करता तो फिर वो किताब कहाँ है? He was very possessive about his books. Yeah, I can understand that book lovers are always possessive about their books. तो मुझे आके ये बोले, पीएस के क्लाइंट थे, कि चोपड़ा जी इस किताब से मेरी बेटी की जान बच गई, वो सुसाइडल थी और ये किताब मैंने उसको दी और किताब पढ़ने के बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता कि इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन एक किताब पढ़ के हो सकता है। मैंने देखा है लेकिन मैंने स्वयं अनुभव किया इसका। और एक बात सोचिए कि आपको कभी भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बताइएगा, वो चीज़ आपकी। मैंने कहा आप भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे कभी इस तरह की ज़रूरत ना पड़े। That's how, you know, my father was so diligent and so dedicated to books. As Pradeep bhaiya rightly stated, कि early morning, you know, Pradeep bhaiya had a habit of coming early in the morning at 8 o'clock. At that time, my father would be more busy, you know, in the washroom, and he would be there in the washroom. He said, I would tell him कि Pradeep bhaiya, उनको बोलना जाएंगे नहीं, I'm coming. Please wait for me. I'm coming. So that was, you know, Pradeep bhaiya. Now, of course, the whole this event was conceived by Pradeep bhaiya. He called me up the other day, Ajay, I would like to dedicate this library, rename it in the name of Wiley. I said, what a better tribute you can pay Pradeep bhaiya than this, you know. And it was all his initiative which has brought us together. You must have seen that lovely library which he actually built up over a period of time, and there are thousands and thousands of books lying there. And I'm sure my father will be. It's such a grand tribute to my father. He must be watching this, that his name has been put up right on the entrance of the library, and perhaps this is what he was looking forward to in life.
Cyrus just mentioned that wherever he is, he'll be more than happy to see such a huge collection of books, and perhaps keen to pick up the books and start reading it. You never know, some of your books may get back from here now. I'm Rajshri Gaggar. I'm the daughter-in-law of Mr. Ratanlal Gaggar, for whom this library has been dedicated to. And yes, my father-in-law was a passionate human being. He was passionate about everything, whether it was music, whether it was arts, whether it was literature. And any person who came to him never went back empty-handed. He was a good soul. He went away early, but till the end, he enjoyed life till the end. The day before he passed away also, we had gone out the previous evening for dinner. And he thoroughly enjoyed himself. He was on dialysis, but food was also very good. And he knew everything, like the taste, ये taste सही नहीं है, ये taste सही है, इसमें ये कम है, उसमें वो कम है. So I think very few people like that come on to earth. हाँ जी, आज का जो प्रोग्राम है ये ऑन द फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ माय फादर, ये ट्रिब्यूट दिया गया है मेरे फादर को ऑन ये जो लाइब्रेरी है मिस्टर चोपड़ा ने उसको रीनेम करके मेरे फादर के नाम में इसको रीनेम किया गया है. आपका नाम सर? अजय गग्गर. अनिल गग्गर जो है, जिनकी आज 1 वर्ष की पुण्यतिथि है उनकी मृत्यु की, तो हम चाहते थे कि वो उनको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होगा कि उनका जो पुस्तक प्रेम था, जो सिर्फ उनके तक सीमित नहीं था, उनके जितने क्लाइंट थे वो सब उनसे प्रभावित होकर जो किताब पढ़ते भी नहीं थे वो पढ़ना चालू कर दिए. और मुझे तो उन्होंने बहुत प्रभावित किया. और जब भी मैं उनसे मिलने जाता था, क्योंकि हम रियल एस्टेट में तो वकीलों के पास जाना पड़ता है, तो पहले वो पुस्तक की बात करते फिर काम की बात करते, और हमेशा हमको बताते कि कौन सी नई किताब पढ़नी चाहिए मुझे. एक मेरे लिए तो पिता तुल्य थे. मैंने अपने पिता को बहुत कम उम्र में खो दिया था, तो वो हमेशा इंस्पायर मेरे को ही नहीं, बहुत मेरे से कारण मेरे बच्चों का, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन सब किताब के प्रेमी हैं. आज जो है वो ऐसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि पुस्तक के प्रति लोगों का लगाव कम होता जा रहा है. तो पुस्तक प्रेम अगर आप किसी को समझाने की चेष्टा करें तो आप खुद को पहले पुस्तक प्रेमी बनना पड़ेगा. बिकॉज बच्चे हैं वो आपके कार्यों से ज़्यादा सीखते हैं बनस्पत की आपकी बातों से. आप कोई काम खुद नहीं कर सकते तो वो उन पर. तो गग्गर साहब एक आइडियल थे हमारे लिए, और ये लाइब्रेरी में उनका नाम जब हमने लगाया तो हमको लगा कि हम सही नाम लगा रहे हैं, क्योंकि उनका पुस्तक प्रेम जो है वो इस लाइब्रेरी में वो वाइब्रेंसी लाएगा जो हमें ज़रूरत है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और पुस्तक पढ़ें. ये